the organism had into the two parts, that is known as the binary fission. So here amoeba divides into the two parts, right? So it can divide by the first it elongates its nucleus, and then when nucleus divides, then it starts to divide the cytoplasm. And by this method amoeba can divide into the two daughter cells, that is known as the daughter amoebae. Then same way, that is the trypanosoma, that is the flagellated protozoan. So that flagellated protozoan, same way, it halves their body into the two parts. So first its nucleus get elongates, and then it divides two nuclei, and then finally it separates its cytoplasm into the two parts, that is known as the binary fission, which is found in the trypanosoma. Then flagellated protozoan, that is the euglena, right? So euglena, this is also the flagellated protozoan. Just a minute. Euglena. So euglena half its body longitudinally. So its shape is elongated. Then first its nucleus get elongated, nucleus get divided, and then finally cytoplasm get divided into the two parts. Then uh, last, that is the paramecia. So paramecia, it is also the elongated animals, and this is the ciliated protozoan, right? So it has the two nucleus. One is the micronucleus and another is the macronucleus. So micronucleus means small in size. So macronucleus elongates and then it divides into the two. So here division is takes place by transverse way. So this type of fusion is known as the transverse fusion. Then in these two, that is the longitudinal fusion, and amoeba, and this simple fusion occurs in the amoeba. So these are the different mode of fusions, right? But in this fusion, the organism halve their body into only the two daughter cells, and that's why it is known as the binary fusion. It means bi means two. So here two parts are formed, and these two parts independently grow, and then it grows into the new organism. So this is the binary fusion. That means this is the asexual reproduction occurs in this unicellular organism. Then next one, that is the multiple fusion. So multiple means that is the multiple parts. See here, the parental cell divides and forms the multiple organisms at a time. So binary fusion occurs in the favorable कंडीशन. जैसे कि फेवरेबल कंडीशन जब होती है तब बाइनरी फ्यूजन होता है, एंड जब एडवर्स कंडीशन आती है, एडवर्स कंडीशन मतलब जैसे कि फूड मटेरियल एंड वाटर अगर अबंडेंट नहीं है, लैकिंग ऑफ द फूड मटेरियल एंड लैकिंग ऑफ द सर्टन फेवरेबल फैक्टर्स, देन ये क्या करते हैं, रेजिस्टिव कोट फॉर्म करते हैं अपने बॉडी के बाहर. Yes, it forms the cyst around itself, and that is the resistive coat. And then जो भी अंदर मटेरियल है वो मटेरियल क्या करते हैं, यूज करते हैं, एंड देन ये बहुत सारे क्या करते हैं अंदर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं. यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, एंड ये डिवाइड होते हैं, मल्टीपल सेल्स अंदर फॉर्म करते हैं, एंड व्हेन adverse condition ends and favorable condition comes, they get burst and they release the daughter cells into the environment. So daughter cell environment में release करने के बाद daughter cell को favorable condition मिलती है, so they can absorb the food material from the environment and independently grow. So ये दिखता है हम लोग को like स्पॉन्जिला, देन कई बैक्टीरियाज होते हैं. सो ऐसे टाइप में हम लोग को दिखता है ये मल्टीपल फ्यूजन. इवन इन अमीबा
ऑल्सो मल्टीपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एडवर्स कंडीशन। तो अमीबा में फेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई होता है, एंड इफ adverse condition comes then it multiplies by the multiple fusion, means when adverse condition comes. So these are the examples of the multiple fusion कि जो organisms multiple fusion through क्या करते हैं, divide होते हैं. Then next one, that is the clones. clones मतलब क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे when organisms grow by the asexual method they form identical copies of their parent, कि जो identical copies form होते हैं same like parent, or progeny or daughter cell are genetically identical to the single parent, and that is referred as the clones. So lower animal reproduces asexually by the another modes also like gemel formation and the budding. So we will see the gemel formation. So gemel formation found in the spongilla. So spongilla, that is the poriferans. See, so gemel is the internal bud. gemel क्या होती है, अंदर gemel of spongilla, internal bud की जो bud only for in the sponges, की जो सिर्फ sponges में form होती है. This is only found in the sponges. Sponges मतलब कि जिसकी sponge like body होती है, right? Their body is with the numerous pore, that is known as the sponges. So it has asexually produced mass, जैसे कि asexually इसमें mass produce होता है, and aggregation of dormant cells are present inside the body that is capable of developing new organism, कि ऐसे cells उसके अंदर में जैसे कि birds form होते हैं and वो cells ग्रुप बनाते हैं या फिर मास बनाते हैं, कि जो मास में सेल्स है, सो दीज सेल्स आर कैपेबल टू डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, कि जो कैपेबल होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के लिए. सो द आर्कियोसाइट्स गेट कोटेड बाय थिक रेजिस्टेंट कोट. आर्कियोसाइट में बाहर एक थिक कोट होता है, रेजिस्टिव कोट होता है. रेजिस्टिव कोट इसलिए होता है कि जो अमीबोसाइट के सिक्रेशन से बनता है एंड फेवरेबल कंडीशन होती है या फिर फेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए बाहर वो थिक कोट फॉर्म करते हैं. एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन एंड होती है, फेवरेबल कंडीशन व्हेन कम्स then gemels hatch. See, this is the micropyle. So micropyle means that is the opening of or mouth. So through this mouth gets open and gemmas are released into the environment. So gemmas are released and they get the nutrients and water and suitable temperature to hatch and develop into the new organism. So this type of reproduction are found in the spongilla. All of you clear? This type of reproduction is found in the only the sponges. Sponges, that is the soft bodied animals which has the numerous pores, right? Then next one, that is the budding. So budding, this is the also a sexual mode of reproduction. In which organism budding is found? Yes, Insha. Budding. This is the type of asexual reproduction which is budding in Hydra and yeast. Yes. So Hydra, this is the multicellular organism. And Multicellular budding, and one is single cellular. yes, unicellular. Unicellular. Yes, unicellular organism can also reproduces by the budding method, and multicellular organism
can also reproduces by the budding method. So the example of budding, that is the यूनिसेलुलर होता है ईस्ट में. ईस्ट भी क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि जो क्या करता है, बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस होता है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सो ईस्ट ईस्ट क्या है, फंगाई है, तो उसमें भी बडिंग होता है सेम वे कि जो बॉडी के बाहर आउटग्रोथ फॉर्म करता है एंड देन न्यूक्लियस जो है बॉडी के अंदर वो डिवाइड होता है like this. Then next step, that is the budding, which is found in the coelentrates. Coelentrate like hydra, then corals. So these organisms are produced by the budding method. So this is the simple method. ये बहुत ही simple method है, which is occur during the favorable condition. कि ये कब बडिंग होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, राइट. सो फेवरेबल कंडीशन मतलब abundance of food material. So it is seen variety of animals like coelentrates or some colonial ascidians. Then a small outgrowth. See here in first condition, a small outgrowth. Outgrowth means that is जैसे कि बॉडी के अंदर डिविजन्स होते हैं एंड बॉडी के डर्मल पार्ट पे, डर्मल मतलब कि जो बॉडी की वॉल है, सो वो वॉल के पार्ट पे क्या होती है, आउटग्रोथ बाहर निकल के आती है, प्रोड्यूस टुवर्ड्स द बेसल एंड ऑफ बॉडी. जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि अपर बॉडी पार्ट में नहीं दिख रहा है, ये कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ बॉडी which is developed as a bud. Bud मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है. So which grows and forms the tentacles. जैसे ही उसको पेरेंट जो है वो पेरेंट फूड मटेरियल करता रहता है, so it supplies the nutrient, parent supplies the nutrient and whatever sources the hydra needs, and then it starts to grow. So it increases its size and then finally it forms the tentacles. So what is the function of tentacle? Anyone knows? Why the hydra needs the tentacles? टेंटाकल्स की जरूरत क्या है हाइड्रा को? यस, डू फास्ट. Why it forms tentacles? Is there need of tentacles? See, in tentacles, these tentacles bears the nidoblast. Nidoblast, पता है ना, nidoblast cells होते हैं, that is the stinging cells that secrete the poison, and so these tentacles are necessary for the offense and defense mechanism, right? Offense मतलब उसको प्रे होल्ड करने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए उसको यूज होते हैं. एंड देन नेक्स्ट होता है दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मतलब उसको अगर बचना है कोई एनिमीज से, तो ये टेंटाकल बहुत ही यूजफुल होते हैं. देन फॉर द लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं. सो ये टेंटाकल्स फॉर्म करता है, क्योंकि टेंटाकल्स के बिना वो सर्वाइव नहीं हो सकता. इसीलिए जैसे ही उसमें ग्रोथ होती है, first it forms the tentacles on their body, and then it get transforms into the new individual. जैसे कि ये totally same like parent क्या करता है, अपनी body form कर लेता है. And so ये process को from this to this process is known as the budding. ये process को हम लोग क्या बोलते हैं, that is the budding. So the young hydra get detached from the parent. जैसे ही वो fully grown हो जाता है, finally it detach from the parent and लाइव इंडिपेंडेंटली, कि जो इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है एंड वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है. सो दिस इज द बडिंग मेथड. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay. Then regeneration in planaria. Next method. Regeneration. So the word biology, जैसे कि हम लोग biology means that is the process observed in all living organism, from the unicellular bacteria up to the most of the complex multicellular organism. तो हम लोग देखते हैं कि रीजनरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इंजुरी होती है, सो इंजुरी होती है तो आपकी स्किन कट जाती है या फिर ये होता है, डैमेज होता है, जैसे कि बर्निंग होता है। सो एट दैट टाइम आप देखते हो कि जब बर्निंग होता है, तो बर्निंग जब होता है तब फिर से कई दिन के बाद आपकी स्किन एज इट इज बनती है। देन जो भी इंजुरी है वो इंजुरी रिपेयर होती है। सो व्हाई दिस ऑकर्स, क्यों होता है ये? आपकी जो भी स्किन है वो रिपेयर होती है, रीग्रो होती है एंड रीस्टोर होती है। जो भी लॉस्ट पार्ट है, डैमेज पार्ट है, एज इट इज रिस्टोर्ड होता है। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू रीजनरेट, right? But there are two type of regeneration. One is the limited and another is the unlimited. बेसिक डिफरेंस ये है कि कई ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन होता है लिमिटेड एंड इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स इट इज ऑफ अनलिमिटेड टाइप, कि कई ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, अनलिमिटेड। सो कैन यू टेल मी लिमिटेड, वन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड? कोई बता सकता है एक एग्जांपल? यस, पता है किसी को लिमिटेड एंड अनलिमिटेड क्या होता है? जैसे कि लिमिटेड मींस एक सर्टेन पीरियड तक या फिर कोई एक लिमिट तक होता है, उसको बोलते हैं दैट इज लिमिटेड। To एंड some अनलिमिटेड extent. मतलब कि जिसकी कोई हद नहीं है, राइट? जिसका कोई लिमिट नहीं है, तो उसको बोलते हैं दैट इज द अनलिमिटेड। सो लिमिटेड फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हमारी जो स्किन डैमेज होती है वो फिर से रिपेयर होती है एज इट इज। बट अगर कोई हमारी उंगली कट गई या फिर फिंगर कट हो गया, तो फिर से फिंगर डेवलप होता है क्या? नहीं होता, राइट? तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो टिश्यू रिपेयर होता है बट ऑर्गन रिपेयर नहीं होता, राइट? या फिर हमारी सपोज किडनी खराब हो गई, तो किडनी नहीं आती है क्या वहां पे, रीजनरेट होती है क्या? सो दैट मीन्स ये रीजनरेशन जो है ह्यूमन बीइंग में, दैट इज द लिमिटेड वन। कि ये टाइप का रीजनरेशन हम लोग को क्या दिखता है, लिमिटेड दिखता है। कि सिर्फ टिश्यू, डैमेज टिश्यू रिपेयर हो रहा है बट ऑर्गन नहीं हो रहा है, राइट? ऑर्गन नहीं होता, तो वो टाइप का जो रीजनरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द लिमिटेड। देन नेक्स्ट वन दैट इज द अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब, सी हियर, दिस इज द प्लानेरिया। ये प्लानेरिया है ऑर्गेनिज्म। प्लानेरिया क्या होता है? दैट इज द प्लाटी हेलमेंट्स, की जिसकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, राइट? दोनों साइड से फ्लैट होती है एंड ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, राइट? सो इसको प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं होता एंड इसीलिए उसमें हम लोग को ये एक पावर दिखती है कि उसका कोई भी पार्ट अगर लॉस्ट होता है तो वो फिर से क्या करता है, रिपेयर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है एंड इट बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी लॉस्ट पार्ट से वो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। एंड डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है इसीलिए इसमें ये एबिलिटी है। अगर डिफेंस ऑर्गेनिज्म मैकेनिज्म नहीं है तो उसका पॉपुलेशन क्या होता, टोटली एक्सटिंक्ट हो जाता, राइट? उसके पास अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो क्या हो जाता, प्लानेरिया बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। सी द प्लानेरिया, प्लानेरिया कोई भी पार्ट उसका अगर हम लोग को दिख रहा है कि मिडल पार्ट, हेड पार्ट या फिर टेल पार्ट, कोई भी पार्ट अगर लॉस्ट होता है तो फिर से उसके पास इतनी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सो रीजनरेशन में होता है क्या, तो आफ्टर रिपीटेटिव सेल डिविजन्स, कि वो खुद में बहुत सारे सेल डिविजन्स करता है एंड सेल डिविजन्स करने के बाद वो फाइनली अपनी पूरी बॉडी क्या कर लेता है, रीग्रो कर लेता है। सो ईच पीस grows into the new planaria. So that is the two clones of original have been formed. जैसे कि ओरिजिनल से जितने बॉडी पार्ट्स फॉर्म होते हैं उतने फ्रैगमेंट डेवलप होते हैं एंड ग्रोज इनटू द अडल्ट वन। सो
जैसे कि हाइड्रा में भी होता है, लॉस्ट पार्ट रीजनरेट होता है, बट पूरा का पूरा हाइड्रा नहीं होता। या फिर जैसे कि हम लोग देते हैं इवन स्टारफिश में भी कोई अगर आर्म उसका लॉस्ट होता है तो वो फिर से क्या करता है, रीजनरेट करता है। सपोज ये है स्टारफिश, सो स्टारफिश में सपोज ये पार्ट टूट गया उसका, तो वो क्या करता है, सेल डिवीजन से फिर से रिपेयर करता है। तो जैसे कि स्टारफिश है, हाइड्रा है, वो सिर्फ लॉस्ट ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, बट प्लानेरिया में हम लोग को दिखता है कि इतनी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, सो दैट कैन फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेवलप करता है। सो ऑल ऑफ यू क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम। क्लियर है मैम। देन नेक्स्ट we will see the phases. जैसे कि हम लोग देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल को बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मींस दैट इज द ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड जेनेटिक मटेरियल इज नॉट रिकम्बाइंड, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, एम्पीमिक्सिस। एम्पीमिक्सिस मींस दैट इज द both parents share their genetic material and the organism have the two different organism have the two chromosomes, one from the two set of chromosome, one from the female parent and another from the male parent. So see the एम्पीमिक्सिस मतलब क्या होता है कि it is the process in which involves production of offsprings by formation of fusion of gametes. See, here female gamete and this is the male gamete. So these two gametes get fused, and when fusion is takes place, that means mixing is takes place. MP means both, right? So MP means both, and mixing means that is a mixing. So gametes, two different gametes are mixes with each other, and that forms the progeny. So in animals, gamete formation primarily involves the meiosis. ऑल ऑफ यू नो कि मियोसिस जो है, मियोसिस थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मियोसिस से there are two types of cell division, one is the mitosis and another is the meiosis. So meiosis is essential for gamete formation. meiosis किस लिए essential होती है, for the gamete formation, and mitosis for the growth and repair, like this. So growth and repair के लिए होती है mitosis. Then हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉइड सेल का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, दैट इज द डबल नंबर, दैट इज 2n नंबर। सो गैमेट में होता है हाफ नंबर, जैसे कि यहाँ पे हाफ नंबर दैट इज दी 23 chromosomes, and in egg also 23 chromosomes are present. So by meiosis process these gametes are formed. जैसे कि parent क्या है, 2n नंबर है, उनका डिप्लॉइड नंबर है, means female parent also 2n number, male parent also 2n number. Then it undergoes meiosis. Germ cells undergo the meiosis, and then by the meiosis process these gametes are formed, which is haploid one. Then why it is necessary, why meiosis occurs? अगर meiosis नहीं होता तो क्या हो सकता है, there will be 4n number will be stored, जैसे कि 4n number stored हो सकता है, as it is for example they share their genetic material, then ploidy level will be increases. So to avoid this, these diploid cell undergoes the meiosis, and to store the normal diploid number, that means 2n number is restored by the haploid gametes, and this is necessary to restore the normal
क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस जरूरी क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर करना जरूरी होता है। देन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स दे shows the two main phases in their life. One is the juvenile phase and another is the reproductive phase. So juvenile phase एक होती है juvenile phase and another is the reproductive. So what is the difference between these two, juvenile and reproductive? So juvenile, in juvenile only growth occurs, physical growth occurs. Juvenile में क्या होती है? Only the physical growth occurs. फिजिकल ग्रोथ होती है सिर्फ। ग्रोथ जो होती है वो दो फेजेस में होती है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग एनिमल्स दो फेजेस में ग्रो होते हैं। एक मतलब फिजिकल ग्रोथ एंड दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ग्रोथ, कि वो फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद दे बिकम starts to regrow and they reproduce the gametes, then fuses the gametes. So there are two phases, one is the juvenile and another is the reproductive. Then so juvenile which is starts from the birth and ends at the puberty. Juvenile phase कहाँ से start होती है? Juvenile phase starts from the birth, जैसे कि birth से start होती है and end होती है puberty age. So that means it starts from birth to puberty age, that is the age at the age 13 एज तक ये फेज कंप्लीट होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है। देन 13 एज से अप टू द डेथ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज होती है इन द मेल, बट इन द फीमेल दिस फेज स्टार्ट्स फ्रॉम एज द 13 टू 45 ओनली। जैसे कि ये फेज 13 ईयर से स्टार्ट होती है एंड इट इज एंड्स एट द एज 45। ये 45 एज में क्या होती है? एंड होती है। सो ये होता है रिप्रोडक्टिव फेज की, जिसमें द एनिमल बिकम produces their animal get matured and they are able to produce their young ones. So that is the reproductive maturity phase. Then next one, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसमें कई सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी के बाद कई इवेंट्स आते हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सो गैमेट फ्यूजन होने के पहले गैमेट्स फॉर्म होते हैं, राइट? देन फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। सो दीज थ्री फेजेस, जैसे कि इसके पहले जो होती है दैट इज द प्री, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो ऐसे तीन फेजेस में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज कंप्लीट होती है। देन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स shows the various patterns of breeding. So उसमें दो ब्रीडिंग के पैटर्न्स आते हैं। वन इज द सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर मतलब क्या होता है? कि जो सिर्फ सीजन में ग्रो होते हैं, they are able to produce their young ones only in the specific season, that is known as the seasonal breeder. So एक होता है seasonal and another one is the continuous. See, seasonal breeder means they produces their young ones in specific season only. So seasonal में आते हैं like sheep, donkey. These are the seasonal breeders. Sheep and donkey. So these are seasonal and continuous. Continuous मतलब कि whole season, कोई एक डेफिनाइट स्पैन नहीं होता। दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, कि वो थ्रू आउट ईयर क्या कर सकते हैं? अपने कॉपीज फॉर्म कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कंटिन्यूअस ब्रीडर में लाइक ह्यूमन एंड एप,
So these are the continuous breeder. There is no definite season for the reproduction, but some animals shows the definite season and that reproduces only in that season. So that are called seasonal breeders. Clear? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Then जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हम लोग को दिखते हैं कि कई स्टेप्स होते हैं. सो थ्रू दिस स्टेप वो क्या होते हैं, सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस में gametes are synthesized. First one that is the gametogenesis. So gametogenesis, gametes are synthesized. Then second step होती है that is the insemination. Insemination means introduction of sperms into the female genital tract. That is known as the insemination. Then second method, third method, that is the internal fertilization. So fertilization are of two type. One is the internal and another is the external. So internal means that is the fertilization. Fusion of male gamete is with female gamete occurs inside the body. Then it is known as the internal fertilization. But in some cases like frog, then some fishes, external fertilization occur in these animals. So human being इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ह्यूमन बीइंग में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल, विच ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. देन थर्ड फोर्थ स्टेज that is the zygote formation. So after fertilization zygote will be formed. So zygote is formed. Then after zygote formation embryogenesis. Embryogenesis means after certain repetitive mitotic division occurs in the zygote, it become larger and larger size, and there is a form mass of cells or organs are formed, that is known as the embryo. But these organs are functionless. कि ये organs क्या होते हैं? Functionless होते हैं. And then gestation मतलब कि जैसे fetus form होता है. सो फिटस मतलब कि सब बॉडी पार्ट्स उसके फॉर्म होते हैं एंड फंक्शनल बनते हैं एंड इट स्टार्ट्स टू मैच्योर. जैसे कि वो मैच्योर होने लगता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन. एंड फाइनल स्टेज होती है दैट इज द बर्थ और इट इज ऑल्सो नोन एज द पार्चुरेशन. पार्चुरेशन और बर्थ. सो these are the processes or steps which are involved into the sexual reproduction. So sexual reproduction यहाँ से start होता है and ends here. Gametogenesis, insemination, then fertilization, zygote formation, embryogenesis, then gestation, and then parturition. All of you clear these steps? Yes, ma'am. Then next one, that is the gametes like sperm and eggs. So these sperms and eggs are produced by the organs, right? That is known as the primary sex organ. So in a female and a male, there are different organs to produce the gametes, right? So in female, जैसे कि फीमेल में हम लोग देखते हैं कि फीमेल gamete that is the egg. So egg is formed into the ovary.
So ovary is said to be primary sex organ. In male, the male gamete, that is the sperm. So sperm are synthesized into the ovary, testes, and these two organ, ovary and testes, are said to be primary sex organ. ये क्या होते हैं? Primary sex organ. Why this is called primary sex organ? Which are present from the birth. जैसे कि ये फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट होते, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. सो ovary in female, ovary, and in male, testes, these are the primary sex organs. Then in that is the secondary sex organ. Secondary sex organ which develops at the time of puberty, that is known as the secondary sex organ, कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? secondary sex organs. So male and female में ये different होते हैं and differentiated by certain specific function, that is known as the secondary sexual characters, or they shows the sexual dimorphism, कि जैसे male में like in male and in female. In male, presence of beard, mustache, hair on chest, muscular body, enlargement of voice box, Adam's apple enlarge होता है. So ये होते हैं secondary sexual characters in the male. And female में, that is the development of breast, then broader pelvis, high pitch voice. So ये होते हैं, that is the female sex organs. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Then अभी हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हेलो मैम, फिर से बताओ ना एक बार. विच पार्ट? हाँ मैम. कौन सा पार्ट? स्टेप्स और क्या बताना है? स्टेप स्टेप पार्ट नहीं काटता, फिर से मैं. जस्ट मिनट. See, there are two types of the organs. One is the primary sex organ and another is the secondary sex organ. So primary sex organ which are present from the birth. Primary की जो birth से present होते. So in female, ovary, and in male, testes are present. And testes produces the sperm, that means male gamete, and ovaries are produce the eggs. So these are the this is the female gamete. ये female gamete होता है, ये male gamete होता है, कि जो organ forms करते हैं, that is known as the primary sex organ, which are present from the birth. Then second, that is the secondary sex organ. So secondary sex organ which are produced at the time of puberty. कब प्रोड्यूस होते हैं? At the time of puberty. So in male में and female में different organs form होते हैं and that is a feature differentiated by certain specific feature. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कि जो मेल में दिखते हैं हम लोग को बियर्ड, मुस्ताच, हेयर ऑन चेस्ट, देन मस्कुलर बॉडी, देन वॉइस बॉक्स जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है. एंड फीमेल में होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, देन ब्रॉडर पेल्विस एंड हाई पिच वॉल्स. सो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट वन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. See, male reproductive system consists of the main three parts. Male reproductive system जो है वो main 3 parts में डिवाइड होती है. एक होता है प्राइमरी ऑर्गन, देन सेकेंड accessory ducts,
एंड तीसरा होता है दैट इज द असेसरी ग्लैंड्स। ऐसे 3 पार्ट्स में, जैसे कि प्राइमरी ऑर्गन में आता है टेस्टिस। सो प्राइमरी ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस। देन डक्ट्स, डक्ट्स में की जो क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, सो ये आते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। एंड सम ग्लैंड्स, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, सो दीज आर द ग्लैंड्स, ये आता है तीसरा पार्ट। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइड्स इनटू द 3 मेन पार्ट्स। One is the primary male organ, then second accessory glands, and third accessory duct, which forms the internal and external genitalia। कि जो ducts या फिर glands external and internal genitalia form करते हैं। So see the first organ, that is the primary sex organ, testicles. So a pair of testes are mesodermal in origin. Mesoderm means what? जैसे कि हम लोग देते हैं जर्म लेयर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। जाइगोट में बहुत डिविजन्स होते हैं एंड जाइगोट के जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या होते हैं, कई जैसे कि हम लोग देते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है वो ब्लास्टुला डिवाइड होता है गैस्ट्रुला, एंड गैस्ट्रुला अपने सेल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सो 3 पार्ट में डिवाइड क्यों करता है? फॉर द ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए ये सेल्स को डिवाइड करते हैं। सो आउटर सेल्स जो होते हैं दैट इज द एक्टोडर्म, कि उससे कई ऑर्गन्स बनते हैं, मेसोडर्म से कई ऑर्गन्स बनते हैं एंड एंडोडर्म से कई ऑर्गन्स बनते हैं। सो मेसोडर्म से मेनली कौन से ऑर्गन फॉर्म होते हैं? दैट इज ए विसरल ऑर्गन। विसरल मींस दैट इज रीच विथ ब्लड सप्लाई, कि जिसको ब्लड सप्लाई क्या होता है, रीच होता है। ऐसे ऑर्गन्स मेसोडर्म से बनते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल है, देन किडनी है, लंग है, हार्ट है, ये सब ऑर्गन मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो सेम वे टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड ओरिजिन उनका क्या होता है, मेसोडर्म से होता है। विच आर फॉर्म इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, कि जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होते हैं। एंड अर्ली फेटल लाइफ टेस्ट डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, जैसे कि फीटस में अर्ली पीरियड में, जैसे कि एम्ब्रियो से जब फीटस में कन्वर्जन हो जाता है एम्ब्रियो का, सो एट दैट टाइम टेस्टिस आर डेवलप, और टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होते हैं एंड लेटर ऑन दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। पहले ये स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट नहीं होते। यस, टेस्टिस स्पर्म और क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, थैंक यू मैम। टेस्टिस का रोल होता है दे प्रोड्यूसेस द हार्मोन एज वेल एज दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं एंड गैमेटोजेनेसिस भी होता है। देन सो हाँ, ये टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में पहले डेवलप होते हैं एंड वो पूरे मैच्योर होने के बाद डिसेंड होते हैं। डिसेंड मतलब कि वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं थ्रू द इंगवल कैनाल। एक एब्डोमिनल कैविटी में कैनाल होता है कि जो कैनाल से वो आते हैं स्क्रोटम में, एंड स्क्रोटम ये सैक होते हैं कि जो सैक उसको थर्मो रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ऑलवेज 37 होता है, राइट। एंड ये 37 टेम्परेचर पे गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते। मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस तो होते हैं बट वो ज्यादा हीट होने की वजह से डीनेचुरेशन हो जाता है, डेथ हो जाती है। एंड ये टेम्परेचर स्लाइटली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना इसेंशियल होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 34। सो दीज स्क्रोटल सैक्स कीप द टेम्परेचर मेंटेन, ये टेम्परेचर स्क्रोटल सैक ही मेंटेन करते हैं। इसीलिए हम लोग देते हैं कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटल सैक which is oval in shape and 4 to 5 centimeter in width। जैसे कि इसकी width 4 to 5 centimeter होती है, then 2 to 3 centimeter width होती है and 3 centimeter in thick। 3 centimeter इसका thickness होता है।
क्लियर, ये क्लियर हो गया। टेस्टिस आर फाउंड इन द पेयर, टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मेजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, देन फॉर्म इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होते हैं, बट आफ्टर मैच्योरिटी वो डिसेंड होते हैं इनटू द स्क्रोटल सैक, फॉर व्हाट, टू मेंटेन द थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए वो डिसेंड होते हैं, एंड डिसेंड होके वो स्क्रोटल सैक में लोकेटेड होते हैं, कि जिसका ओवल इन शेप होता है, एंड 4 to 5 लेंथ होती है, 2 to 3 विड्थ होती है, एंड 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है। देन वी विल सी द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। Then tell me the one answer, why testes are located in scrotal sac outside the body? Yes, to maintain their body temperature constant. जैसे कि उनका टेम्परेचर जो है वो 35 मेंटेन करने के लिए वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, दैट इज दी टीएस ऑफ एलएस ऑफ टेस्टिस। जैसे कि हम लोग एलएस देखते हैं, तो टेस्टिस एक्सटर्नली कवर्ड बाय दी कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजिनस मतलब कोलेजन, कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। सो बाहर का उसका कोट जो होता है वो कोट होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। सी हियर, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, आउटर मोस्ट कोट which is formed from the collagenous connective tissue. Then outer to its incomplete tunica vaginalis is present. जैसे कि इसके बाहर इनकम्प्लीट एक कोट होता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस, एंड इनर टू ट्यूनिका, उसके अंदर एक होता है ट्यूनिका वेस्कुलसा, की जो थीन होता है एंड वेस्कुलर होता है। सो फाइबर्स फ्रॉम ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जैसे कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया से जो फाइबर अराइज होते हैं, कि जो फाइबर्स ट्यूनिका टेस्टिस को अलग अलग लोब में डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज द टेस्टिकुलर लोबिल्स। देखो, ये फाइबर अराइजेस फ्रॉम दी, ऐसे अराइज होते हैं कि जो फाइबर टेस्टिस को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं और लोबिल्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज द टेस्टिकुलर लोबिल्स। कि कितने लोबिल्स होते हैं, हाउ मेनी देयर लोबिल्स आर देयर? सो देयर आर 200 to 300 लोबिल्स, कि जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोबिल्स होते हैं टेस्टिस में। देन each with 1 to 4 highly coiled ट्यूबिल, सेमिनिफेरस ट्यूबिल, कि एक में 1 से 4, अगर एक सिंगल लोबिल लिया तो उसमें 1 से 4 ऐसे क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स होते हैं, कि जो इंटरनली हम लोग को अंदर से अगर देखा तो हम लोग इंटरनली इट इज लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो कि एक ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूबिल की अगर हम लोग देखते हैं तो अंदर से ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल से क्या होते हैं, लाइन होते हैं, एंड उसके बीच में हम लोग को दिखते हैं ऐसे ट्रायंगुलर कोनिकल सर्टोलाइज सेल्स विच आर लोकेटेड बिटवीन द क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, कि जिसके बीच में होते हैं, बहुत ही फ्यू होते हैं एंड पिरामिडल होते हैं, दैट इज नोन एज द सर्टोलाइज सेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोलाइज सेल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बीच में होता है। सो
हम लोग देते हैं साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये है कि यहाँ पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबल। ये होती है साइट कि जहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं एंड वो आते हैं मैट्रिक्स में। कि जो सर्टोलाइज सेल मतलब होते हैं नर्व सेल्स, कि जो नर्व सेल्स फीड टू द स्पर्मेटोगोनिया एंड देन उसकी होने लगती है ग्रोथ। So, germinal epithelial cell undergo the gametogenesis to form spermatozoa, कि जो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करते हैं एंड सर्टोलाइज सेल जो है, सर्टोलाइज सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स। डेवलपिंग स्पर्म्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये सर्टोलाइज सेल्स को क्या बोलता है? नर्स सेल्स। नर्स मतलब द पर्सन हु टेकिंग केयर ऑफ द यंग वंस, उसको बोलता है नर्स। सो ये नर्सिंग का काम करते हैं, जैसे कि फीडिंग करना, उसकी केयर करना। ये सब सर्टोलाइज सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म्स को फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। देन अगर हम लोग देखते हैं नाउ हम लोग देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस। सीधा देखो, जैसे मैंने दिखाया था कि सेमिनिफेरस ट्यूबिल जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबिल, ये अंदर एक इसमें एक लोबिल में हम लोग को 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबिल दिखते हैं। सो देखो 1 2 एंड 3, एक इसमें हम लोग को 3 दिख रहे हैं यहाँ पे। सो सेमिनिफेरस ट्यूबिल विच इज लाइन बाय द क्यूबोइडल एपिथेलियम। देखो यहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियम है, लाइट ग्रीन कलर के सेल्स दिख रहे हैं बॉर्डर पे। सो वो है दैट इज दिस जर्मिनल एपिथेलियम। कि जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में हम लोग को दिख रहे हैं दैट इज दिस सर्टोलाइज सेल। सो दीज पिंक कलर्ड सेल्स, पिरामिडल सेल्स आर नर्व सेल्स, कि ये है नर्व सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोलाइज सेल्स। देन सर्टोलाइज सेल के बीच में हम लोग को क्या दिखता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, जैसे कि ग्रुप सेल्स होते हैं। सेमिनिफेरस, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं दैट इज द इंटरस्टिशियल और इट इज नोन एज द लेडिक सेल्स which are found between the seminiferous tubule. They secrete the androgen or the hormone testosterone, कि यही वो सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर कि जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन which is necessary for the ये टेस्टोस्टेरोन किस लिए इसेंशियल होता है? डेवलपमेंट ऑफ द और सेक्सुअल बिहेवियर, देन डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके लिए क्या होते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन इसेंशियल होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी डक्ट्स है, देन ग्लैंड्स, ऑल दिस पार्ट। ऑल ऑफ यू क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Then so we will stop here. Remaining part we will see in the next lecture. Clear all of you? किसी को डाउट है? कुछ डाउट है किसी को? नहीं मैम, नहीं। ओके